Good morning, students. Now let me discuss about the numericals related to the psychometric terms and relationships. Problem number 1. Any data that is given saturation pressure of water vapor means, or we can say that the pressure of water vapor at saturation दिया हुआ है 0.6624 watt, and the barometric pressure, or it is also known as the total pressure, given as 1 bar, and corresponding relative humidity is 72%. Find out specific humidity. आपको 3 टर्म्स दे रखे हैं, PS दे रखा है, PV दे रखा है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी दे रखी है. आपको स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकालना. So first one, the one thing arises in the mind, that is what the value we find out by which we can resolve this question, or we can find out the value of W. So first one, we know that W is equal to, in previous videos we find out a relationship between the W and pressure. So there is a relation between the W is equal to 0.622 PV, यानी this one be the partial pressure of water vapor upon PV minus PV. PV is the total pressure, and this PV is given. This PV is given. So first one, you have to find out this PV, by which PV is given and here PS is given. So now what is the relation between PS and PV? By using a relative humidity, and relative humidity is what? It is the ratio of PV over PS. So from here we can put the value of PS, and pi we find out the value of PV. Here it is the 0.66 bar. Now the value of PV is good, and this one we can now find out the value of W. W is equal to again 0.56. The unit comes in kg per kg of dry. The unit comes in kg per kg of dry air. So converting it into multiply by 1000 in gram per kg of dry. यानी W यानी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी. इट मीन्स इसका मतलब है हमारा कि ये जो कंडीशन थी इस क्वेश्चंस में, जो मॉइस्चर एयर थी, उसमें 560 ग्राम 0.56 56 560 ग्राम जो भी है, दैट इज द सेकेंड क्वेश्चन. Problem number 2. Question is given the moist air at 1.013 bar. 1.013 bar and 30 डिग्री सेंटीग्रेड कंटेन. 30 डिग्री टेम्परेचर पे और 1.103 बार प्रेशर पे इट कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ वाटर वेपर पर केजी ऑफ ड्राई एयर. 10 ग्राम वाटर वेपर. सैचुरेशन प्रेशर दे रखा है वाटर वेपर का 30 डिग्री इज 3.167. रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालना है, ठीक है ना. तो आपको दे क्या रखा है यहाँ पे, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या क्या दे रखा है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना. तो आपको दे रखा है यहाँ पे PS दे रखा है, क्लियर है. आपको स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी दे रखी है, एंड तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू, वी नो दैट phi इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एक फॉर्मूला होता है. phi इज इक्वल टू होता है अगेन PV ओवर PS, ये वाला, ये फॉर्मूला होता है. अब PS आपको गिवन है, तो फाइंड आउट अगेन PV. अब PV निकालने का तरीका क्या है आपका, कि PV कैसे निकलेगा आपका, कि विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी. The help of specific humidity. अब ये कैसे निकलेगा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की हेल्प से, बिकॉज
आपको पहले बैरोमेट्रिक प्रेशर निकालना पड़ेगा। बैरोमेट्रिक प्रेशर कैसे निकलेगा? तो there are two formulas. One is W is equal to 0.622 PS over PV minus PS, and second one is the W 0.622 PS upon PV minus PS. ठीक है, यहाँ से निकलेगा। तो we know that W is equal to, यहाँ से निकाल रहे हैं 0.622 PS की वैल्यू गिवन है हमें यहाँ पे, PV की भी गिवन है, PS की गिवन है, पुट कर देंगे यहाँ पे, ये वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे 1/100 क्यों लिखा है हमने? बिकॉज द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितना दे रखा है हमारा, 10 ग्राम पर केजी, 10 ग्राम पर केजी। इसे हम केजी पर केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1/1000 का डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी। So now here the value of PV comes here 2. Okay. अब चाहिए हमें क्या चाहिए? पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर। नाउ पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर के लिए हमें इस फॉर्मूले में अगेन पुट कर देंगे W is equal to 0.6। नाउ पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर हियर 1.602 किलो पास्कल। नाउ पुट हियर रिलेटिव ह्यूमिडिटी is 50.6%। Now the third question is this one. Atmospheric air at 100 kilopascal and 30 degrees centigrade has a relative humidity of 70%. The saturation pressure of water vapor at 30 degrees centigrade is 4.25 kilopascal. Find the partial pressure of dry. Simple question है। आपको टोटल प्रेशर दे रखा है 1000 kilopascal, DVT दे रखा है आपको 30 डिग्री, RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी 5 दे रखी है आपको, सैचुरेशन PS दे रखा है। फाइंड द पार्शियल प्रेशर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी से हम विद द हेल्प से हम क्या निकाल देंगे? PV निकाल देंगे। सीधे 5 इक्वल टू PV अपॉन PS, तो हियर PV इज इक्वल टू 2.97 किलोपास्कल। टोटल प्रेशर की बात की जाए तो हियर पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर निकाला जाए तो 2.975 में से आपका जो भी है 100 में से ये बता देंगे 97 समथिंग। This will be the क्वेश्चन नंबर। एक और है हमारा प्रॉब्लम नंबर 4, इस पे बात करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 is given, for example, the reading from a sling psychometer is given as a dry bulb temperature 30 degree centigrade, WBT 20 degree centigrade, barometric pressure 740 mm of Hg। ये mm of Hg में दे रखा है आपका। Using steam table, there are only 3 data given. By using steam table, find out dew point temperature, relative humidity, specific humidity, degree of saturation, density of water vapor, and anything. The first term for dew point temperature. Dew point temperature, there is a relation between the dew point temperature के लिए हमें एक relation दे रखा था वहाँ पे पार्शियल प्रेशर के लिए, तो DPT निकालना है। DPT निकालने के लिए सबसे पहले एक रिलेशन यूज किया था हमने, ये दिस वन बी द पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना, PW माइनस के, ये क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एट अ वेट वल्व टेम्परेचर। वेट वल्व टेम्परेचर पे निकलेगा ये हमारा प्रेशर PV। तो नाउ दिस वन बी PW इज टेकन फ्रॉम द स्टीम टेबल एट अ वेट वल्व टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड के रेस्पेक्ट में। स्टीम टेबल में जाएंगे, स्टीम टेबल में हम 20 डिग्री वाली लाइन पे जाएंगे, वहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग प्रेशर होगा वो हमारा PW हो जाएगा। क्लियर? अब जो PV दे रखा है वो 740 mm दे रखा है। ये कन्वर्टिंग फॉर्मूला हमारा 133.32 mm को न्यूटन पर मीटर में बार में कन्वर्ट कर। नाउ हियर 0.98642 बार आ जाएगा। क्लियर? पुट द वैल्यू ऑफ दीज, नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ PV आ गया। ये पार्शियल प्रेशर आ, हमें क्या चाहिए था यहाँ पे? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकाल। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब ये जो हमारा प्रेशर आया है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, ठीक है ना, स्टीम टेबल से इस प्रेशर की करस्पॉन्डिंग जो भी टेम्परेचर होगा वो हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा। तो नाउ पार्शियल प्रेशर पे जितना भी हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर पे जितना भी हमारा टेम्परेचर आएगा वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हो जाएगा। तो
स्टीम टेबल में जाएंगे, ये प्रेशर चेक करेंगे, करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर जो होगा हमारा डी। फॉर सेकंड केस रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालनी है हमें। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, पाई का फॉर्मूला होता है पीवी अपॉन पीएस। पीवी हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं, 0.01701 आया, पीएस निकाल। तो पीएस सैचुरेशन प्रेशर, वी नो दैट, हम जानते हैं कि सैचुरेशन प्रेशर जो होता है यानी सैचुरेटेड जब एयर होती है उस टाइम पे तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर पे ही निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रेशर निकालेंगे सैचुरेशन ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ये हो गया हमारा किस पे, ड्यू पॉइंट पे, और ये हम निकालेंगे ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर के सामने जाएंगे 30 डिग्री पे, करस्पॉन्डिंग प्रेशर वैल्यू, दोनों का रेशियो हो गया ये। नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। पीवी निकाल चुके हैं हम, पीएस निकाल चुके हैं हम। नाउ पुट डायरेक्टली द वैल्यू, W equal to 0.622 PV upon PV minus PS. From here, this will be not a PS, it is a PV. Now here 0.622 PV upon PV minus PV. Now ये वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकलता है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आने के बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पॉइंट नंबर नेक्स्ट है न्यू, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। सो वी नो दैट डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालने के लिए हम क्या जानते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और मोस्ट एयर टू द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और मोस्ट एयर एट सैचुरेशन प्रेशर टेम्परेचर। तो नाउ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी फॉर सैचुरेशन प्रेशर, दिस वन भी पीएस अपॉन पीएस, यहाँ से निकाले, दोनों का रेशियो लिया। अब हमें निकालना है density of water. This will be the formula for density of water equal W PV minus PV upon RET. तो W हम निकाल ही चुके हैं, PV है ही हमारे पास, PV भी है एंड बार में है, मल्टीप्लाई करेंगे 10 to the power 5 का, एंड हियर RE की वैल्यू 287 होती है, 273 plus 30, so now here the density कितनी आ जाएगी, 0.216. एंड फॉर एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर, एंथैल्पी निकालनी है हमें, तो हमने ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे एंथैल्पी, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, नाउ वी नो दैट फॉर्मूला ऑफ एंथैल्पी इज दिस वन, ठीक है, H बराबर 1.022 TD प्लस W HFG DP प्लस 2.3 TDP। तो फर्स्ट वन हमें HFG DP की वैल्यू चाहिए, तो स्टीम टेबल से हम जाएंगे, HFG जो निकालेंगे वेपोराइजेशन, ये क्या है हमारी HFG, क्या है HFG ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, दिस विल बी द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। तो करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर इन 15, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 15, स्टीम टेबल में जाएंगे 15 डिग्री के सामने जो भी हमारी HFG यानी लेटेंट हीट की वैल्यू होगी वो हमारी HFG DP होगी, एंड ये वैल्यू जो आएगी हमारी वो 24661.1 किलोजूल पर केजी है। पुट द वैल्यू एंड फाइंड आउट इट इज। तो इस तरीके से हम सारा का सारा स्टेप बाय स्टेप सारा का सारा करेंगे। थैंक यू।